Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ कुमार बिजॉय। कुमार बिजॉय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा। Thank you, Amit. Yes, friends, let's start with the headlines. India and US aim to more than double total bilateral trade to $500 billion by 2030. India's wholesale inflation eases to 2.31% in January 2025. And benchmark domestic indices fall for 8th straight session. Sensex slips 200 points. Nifty closes below 23,000. आर्थिक सुर्खियों में भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना कर $500 अरब करने का लक्ष्य रखा। जनवरी के दौरान थोक महंगाई दर घटकर 2.31% दर्ज और घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार 8वें कारोबारी सत्र में गिरावट। सेंसेक्स 200 अंक का, निफ्टी भी 23,000 के स्तर से नीचे दर्ज हुआ। While India and the US have decided to more than double the total bilateral trade to $500 billion by 2030. Addressing the joint press meet after holding bilateral talks with US President Donald Trump at the White House in Washington, D.C. today, Prime Minister Narendra Modi said India and US will continue to advance India-US strategic partnership. Mr. Modi said both sides agreeing on transforming relationship utilizing strategic technology trust, and under this emphasis will be laid on creating strong supply chains of critical minerals, advanced materials and pharmaceuticals. The Prime Minister said America plays an important role in India's defense preparedness. He said as strategic and trusted partners, both nations are actively moving towards joint development, joint production and transfer of technology. So, Bijoyji, Modi 3.0 versus Trump 2.0. This Indo-US trade meet has shadowed the media for the last 2 days. What do you make of it? This is a very good gesture. Actually, in the condition where before taking oath, well before January 20th, the way Trump had got that they are going to put a lot of tariffs, and even after that, and even very recently has said that reciprocal tariff has to be imposed. In that environment, in that cloud, the two are bromancing. That is really a great thing. And we are expecting that certainly both will come out with that synergic approach will be maintained. And the way Mr. Trump and Modi ji is making it, the way trade routes, trade agreement, and even working on other fronts like looking into global peace, looking into terrorism, front, all these things are going to be a very good one. So let's hope it is going to be a new beginning afterward. It's mega plus mega. That's the buzzword. Make India great again, says our Prime Minister. Make America great again, says the US President. Yeah. Can the twain meet somewhere? So, MAGA and MEGA mix mega. That is what the ultimate outcome is. See, if you minutely observe, that is the duty of any nation head, any country head. They have to look their country first and they have to make their country ahead. And nothing wrong into when Trump is giving this MAGA, make America great again, and India, make India great again. Nothing wrong into it. And certainly, but instead of competition, how cooperation can make them together, that they have to find out. So it is not a competitive line. It is not a crossing with each other, rather helping each other, cooperating with each other in symbiotic condition. How they can move, that is what really the one has to decide. And the entire team has to work together
to make it possible. मिस्टर बिजोय, अगर प्रधानमंत्री जी की बात को देखें, उन्होंने 500 अरब का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी इस कारोबार की बारीकियां हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मटेरियल्स और फार्मा के लिए जहां भारत को जरूरत है वहां उन्होंने भारत के हितों को सर्वोपरि रखा है। साथ ही साथ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करी है कि रक्षा के लिए हमें तैयार रहना है, जिसमें अमेरिका की मदद चाहिए। और दोनों देशों ने ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का हस्तांतरण और आपसी सहयोग से उत्पादन, ये कितना बड़ा विषय है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत की आर्थिक परिस्थितियों के परिदृश्य में। क्योंकि अगर यहां पे ही उत्पादन होता है और यहां पे ही हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक का हस्तांतरण करते हैं, तो हमारे लिए अपने सेल्फ रिलायंस के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ऐसा है कि कभी भी कोई भी जब हम स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं तो सबसे बेस्ट स्टेप होता है कि आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखिए, जो थ्रेट है इसको देखिए। और मेरे ख्याल से अभी भारत बहुत अच्छे तरीके से अपने स्वॉट को देख रहा है और इसमें दो मत नहीं है कि अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, असीमित अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वीकनेसेस भी है हमारे साथ, थ्रेट भी है हमारे साथ। जो वीकनेस है उसमें जरूरी नहीं है कि आज के डेट में आपको सब कुछ इन हाउस इंटरनल डेवलप करने की जरूरत है। जहां जरूरत होती है कि आप किसी और के सहयोग से उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, उस रास्ते को अडॉप्ट करना चाहिए। अब उसमें आपका सहयोगी कौन हो, तो सहयोगी समर्थ जिसके पास है, जिसके पास वो तकनीकी उपलब्ध है और जो मित्र पूर्वक आपसे सहयोग कर सकता है। अगर तकनीकी हो भी और मित्रता नहीं रखता हो तो फिर बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका है, इजराइल है, फ्रांस है, इन सब को आप देखेंगे तो बिना किसी शंका के उनके पास उन्नत तकनीकी है और उस उन्नत तकनीकी का हम फायदा उठा सकते हैं। तो जहां ये भी मित्रता निभाते हुए ये उनके आर्थिक हित भी ध्यान में रखें और अपनी भी आर्थिक हित, क्योंकि हमारे यहाँ इससे ही बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होने की संभावना है। इसलिए अगर उनकी तकनीकी और हमारा जो लेबर फोर्स है, हमारा जो श्रम है, हमारे पास जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज्यादा अचीव किया जा सकता है। ये जो 500 अरब डॉलर का जो व्यापार का लक्ष्य रखा है, ये कितना आपके हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है और कितना प्राप्त करने लायक बनता है, और इससे दोनों देशों के बीच में जो आपसी रिश्ता है वो कितना मजबूत होगा? देखिए, अभी करीब करीब आप मान के चलिए कि 125 से 130 के आसपास हमारा वैल्यू है जी, और अब या 150 के आसपास मान लीजिए, तो इसका मतलब ये 3 फोल्ड की तरफ बात होगी। अगले 5 वर्षों में अगर 3 गुना, 5 से 6 साल में आप ले लीजिए 3 गुना है। देखिए, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, आसान भी नहीं। हाँ, आसान भी नहीं है, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन जितने नए क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट की बात करेंगे, एआई इनेबल्ड जो सर्विसेज, ये सब बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को अगर मिल के पूरा किया जाए तो आपस का जो व्यापार है वो 500 बिलियन पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे लगता है कि एक संभव प्रयास हो सकता है। भारत ललिमा, एक थोड़ी सी चीज और मैं ये जो भारतीय प्रधानमंत्री का एक बड़ा लक्ष्य होता है कि अगर हमारे दो देशों के मध्य में व्यापारिक रिश्ता मजबूत होता है तो निश्चित तौर पे आपसी समझ और एक आपसी भरोसा वो बेहतर होता है, जिससे लंबे समय के लिए हम मित्र भी बने रहते हैं और चूंकि कारोबारी रिश्ते रहते हैं तो वो मित्रता कायम रहती है। कितना इसको महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी तरह के व्यापार में, निर्णय लेने वाले अगर देर करें तो वो देर होता है। अगर निर्णय लेने वाले, अगर ऊपर से ये बात चल रही हो और नीचे वो परकुलेट करके आ रहा है, नीचे वो छन कर आ रहा है, तो वहाँ संभावनाएं बहुत तेज हो जाती हैं। अगर जो हम लोग प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का टाइम मेजर करते हैं उसमें फाइल टाइम बहुत होता है। अगर वो फाइल में टाइम कम हो जाए
त्वरित तरीके से निर्णय हो और उसका रूपांतरण जमीन पर हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है. All right, Kumar, two questions there. In this whole picture, where does China stand? Because India and US both carry the burden of a lot of imports, unbalanced imports from China. And second question is about de-dollarization. President Trump has often threatened BRICS about not to talk about replacing the dollar because the whole world deals with dollar, and dollar has been strengthening over the last few weeks, months. Does that bring a pause or a comma to de-dollarization process? It was a buzzword in international arena for a long time, but does that get a break? So one is the China economy. Where does that fit in now in the whole picture? And the dollar. First of all, I'll give you a few statistics that will help to make our discussion more understandable. You know, I'm sharing you 23 versus 24 data. It's a 24 data is there. And US has got around 11.3% of trade participation in the global trade. Whereas global GDP, it has got 26.5% participation. I'm sharing 24 data. Okay. And if you look into Forex reserve globally, 58.2% is Forex reserve in the form of USD. And very interestingly, Forex transaction is there. It is 89.8% global transaction is USD. So if look into this, closer to 90%. So if global trade is 90% in USD, so you can say USA's strength lies in USD. Right. And now any country will like to have bilaterally deciding their own country and own currency transactions or something different from dollar. Certainly it will disturb the power of USA. Not only USD. Yes. So you can understand those who have these statistics and know the source of energy will not like to see that de-dollarization should be successful. That's the one thing. Even China, you said, that's your first point. China is ultimately, net exporter to more or less whole world. Yes. Yeah, absolutely. that is what China is. All over. And in 90s and, first decade of this millennium, China has stabilize itself as a really mega economy. Of course, right now in the GDP count, number 2, but even number 2 and number 3 has got a very big gap, very, very big gap. Secondly, there has been some, one you can say last decade has been for little slowdown for China, but China is again going to be resilient in their economy. And following Keynesian philosophy, China is going to have more stimulus, and making that a stimulus, it will be bouncing back again. So it is going to be good triophyte, number 1, number 2, number 3, and another 2 to 3 decades. By 2047, we are looking into that league. Right. In this another 2 decades, these 3 economies will be having a really very good wrestling at the economic and trade front. I would like to put it this way: Uncle Sam continues to be the big dad. Big dad. No doubt. चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. जनवरी के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति गिरावट से 2.31% दर्ज हुई. दिसंबर 2024 के दौरान मुद्रास्फीति 2.37% थी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर के मुकाबले जनवरी माह में थोक खाद्य महंगाई दर 8.9% से घटकर 7.5% रह गई. इस दौरान प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 6% से घटकर 4.7% रह गई. ऊर्जा एवं ईंधन क्षेत्र की महंगाई दर नकारात्मक 3.8% से बढ़कर 2.8% हुई. हालांकि इस दौरान निर्मित पदार्थों की महंगाई दर में भी मामूली बढ़त दर्ज हुई. कुछ तो राहत, अगर थोक मूल्य सूचकांक महंगाई दर में भी राहत आती है, और खासतौर पे जब फूड इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, वहां पे अगर राहत आती है तो ये खुदरा महंगाई दर पे कितना असर डालेगी? देखिए, ये पहली बात है कि महंगाई दर अगर आपके जो टारगेट है उसके अंदर आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये सीजनल इफेक्ट है जी. और सीजनल इफेक्ट जो फूड इफेक्ट का होता है, जनरली देखिए विंटर सीजन में
ये बहुत उपलब्ध हो जाता है, हर विंटर सीजन में ये होता है। तो ऐसा कुछ इसमें ग्रेट नहीं है कि अलग से कुछ अचीव किया गया हो। फिर अगर ये जाके मई जून में भी मेंटेन हो तब माना जाए कि सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। चलिए नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगातार 8वें कारोबारी सत्र में गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 200 अंक गिरकर 76,000 के स्तर से नीचे 75,939 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% की गिरावट से 102 अंक गिरकर 23,000 के स्तर से नीचे 22,929 पर बंद हुआ। हालांकि बीएसए मिड कैप्स और स्मॉल कैप सूचकांकों में गिरावट का दायरा अधिक रहा। बीएसए मिड कैप सूचकांक में 2.6% और स्मॉल कैप सूचकांक में 3.2% की गिरावट दर्ज हुई। A look at the stocks in detail now. Benchmark domestic equity indices today ended in negative territory amid broad-based sell-off extending their downward trend to 8th straight session. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex fell 200 points or 0.26% to close at 75,939. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 shed 102 points or 0.44% to settle at 22,929. The broader market indices at the BSE ended with deeper cuts. The mid-cap index slumped almost 2.6% and the small-cap index tanked over 3.2%. In the Sensex index, 21 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Adani Ports shed 4.2%, Ultratech Cement slipped over 2.4%, and Sun Pharma fell 2.4%. Conversely, among the top gainers, Nestle India advanced 0.9%, ICICI Bank rose 0.8%, and Infosys gained over 0.7%. In sectoral indices at the BSE, all sectors ended down except focused IT, which remained nearly unchanged. In top laggards, services lost over 3.1%, industrials slipped over 3%, and healthcare as well as capital goods both fell over 2.7% each. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,320 companies declined and 681 advanced while 82 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 8 companies hit their 52-week high while 563 hit their 52-week low. Yes. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की मजबूती से 86.82 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स कारोबार के दौरान 107 के स्तर पर दर्ज हुआ। मिस्टर विजय, शेयर बाजार में कब थमेगी गिरावट, ये मेरे ही नहीं बहुत सारे निवेशकों का या बहुत सारे जिन्होंने चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से या सीधे निवेश किया है, उनकी चिंता कितनी जायज है और क्या आने वाले सोमवार को हम कुछ उम्मीद की किरण देख सकते हैं? सोमवार को क्या होगा ये तो सोमवार ही बताएगा। लेकिन एक चीज है कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये सिर्फ करेक्शन है। कहीं कोई ऐसा इकोनॉमिक फंडामेंटल नहीं है जो मार्केट को नीचे क्रैश करे। आज भी अगर देखेंगे शुरुआती दौर में जिस तरह से मार्केट नीचे लुढ़का जी तकरीबन आधा प्रतिशत तक चला गया था, या अगर वैसे अगर नीचे गिरे और फिर उसके बाद संभला मार्केट, ये इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, यूएस इम्पैक्ट है, एफआईज का पुल आउट. का इम्पैक्ट है, लेकिन डोमेस्टिकली हम रोबस्ट है. बिल्कुल. और डोमेस्टिक बात मैं करूं, देखिए आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने तकरीबन 13,560 करोड़ डॉलर रुपए की बिकवाली करी है और खरीदारी सिर्फ 9,000 करोड़ की करी है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,827 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी करी है, जबकि अगर उन्होंने बिकवाली की बात करें तो तकरीबन 8,460 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है. अगर नेट की बात करें तो तकरीबन 4,300 में वो शुद्ध बिकवाल रहे हैं और घरेलू संस्थागत निवेशक 4,400 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे हैं. क्या इसी ने बाजार को बचाया है या इसी ने बाजार को सहायता दी है? बिल्कुल इस स्तर पर रहने में. बिल्कुल. लेकिन 23,000 का स्तर का नीचे जब निफ्टी आता है तो कहीं चिंताएं लगती हैं. देखिए ऐसे है कि ये माना जा रहा था कि ये जब तक मार्केट पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता है तब तक ये चिंता बनी रहेगी. लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा यहाँ पर कि जो ये जितना भी है पहले भी देखा जा रहा था और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि मार्केट ओवर वैल्यूड था. क्या बॉटम आउट कब तक होगा या ये बॉटम आउट की लेवल है? क्लोजर टू बॉटम आउट है.
1000 to 2000 पॉइंट्स का अभी भी सेंसेक्स या निफ्टी? सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। निफ्टी अगर निफ्टी आप 1000 to 2000 पॉइंट बोलेंगे तो बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट बनेगा। मैं सेंसेक्स की बात कर रहा था। और इसके बाद की जो रिकवरी होगी वो रिकवरी बेटर होगी, क्योंकि डोमेस्टिक में कहीं अभी आपने इन्फ्लेशन का रेट पढ़ा, इन्फ्लेशन इज इन गुड कंडीशन। जो जीडीपी हमारा जो रिवाइज रेट था वो भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है, 6.4 का रिवाइज रेट है। और अगर आप देखेंगे आज यूएसए का भी इन्फ्लेशन का फिगर आया हुआ है, और यूएस का इन्फ्लेशन फिगर भी थोड़ा अपर साइड में है rather than on lower side to it. And what you're saying is quite believable, Bijoy, because the geopolitical situation has actually improved with talks of peace between Russia and Ukraine. Both the president and the prime minister not in favor of war, and ceasefire between Israel and Gaza. Very correct. So Yes. what you're saying is quite believable. I endorse it. All right, that was in lighter vein. We move on. India's foreign exchange reserves increased by over $7.65 billion to over $638.26 billion in the week ending February 7, according to the latest data released by the Reserve Bank of India. This is the third consecutive week of rise in the reserves. In the last week, foreign currency assets, a major component of the reserves, rose by over $6.42 billion to $544.10 billion. Also, gold reserves were up by over $1.3 billion, totaling over $72.20 billion. Meanwhile, the special drawing rights were down by $11 million to over $17.87 billion as per the central bank data. रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर चिंताओं के कारण धन निकासी सहित विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि खाता धारकों को 5 लाख रुपए तक का बीमा दावा की सुविधा मिलेगी। इससे पहले की खबरों के सिलसिले को आगे बढ़े, बहुत संक्षेप में एक छोटा सा कमेंट्स में आपका चाहूंगा। ये जो फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ये भी क्या कुछ उम्मीद की किरण जगाती है, क्योंकि लगातार गिरावट थी? नहीं, ये जो पीरियड होता है, जब आपका ईयर एंड होता है तो कुछ हमारे पेमेंट्स होते हैं जो क्वार्टरली पेमेंट जाते हैं, तो वो पेमेंट क्या होता है कि रिजर्व्स को थोड़ा कम करता है। जो फॉरेन के पेमेंट्स हमारे कई बोरोइंग्स हैं, उनके पेमेंट होते हैं, आउटफ्लो हैं। और जब इसके बाद देखेंगे कि कैपिटल इनफ्लो हमारा बेहतर है, तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिर भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कैपिटल अकाउंट पे रिसीवेबल्स हमारे बढ़ रहे हैं, और रिसीवेबल्स का बाइफर्केशन दिखाएगा इवन एफडीआई वगैरह। तो जो एक्चुअल वे में जहां स्ट्रेंथ बननी चाहिए वहां बन रहा है, एंड इट इज ए पॉजिटिव इंडिकेटर। जी, चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि यदि डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स समूह ने किसी मुद्रा को जारी किया तो ग्रुप समाप्त हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों द्वारा ऐसी किसी योजना पर आगे बढ़ने की स्थिति में अमेरिका 100% शुल्क लगाएगा। अमेरिकी वस्तुओं पर अन्य देशों द्वारा लगाए जाने शुल्कों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संकेत दिया, अभी जिस तरह से आपने बात करी थी, कि अगर अमेरिकी डॉलर में व्यापार को कहीं भी हल्का सा भी खतरा आता है तो राष्ट्रपति ट्रंप इसके प्रति बहुत बेहद सजग और बेहद सतर्क हैं। ये उनका प्रोएक्टिव एक्शन है, और ये प्रोएक्टिव एक्शन एक प्रेसिडेंट से एक्सपेक्टेड है, स्पेशली द प्रेसिडेंट जो अपने कंट्री के प्रति बहुत ज्यादा सजग और सचेत है, और जो व्यापारी समूह से संबंध रखता है, जो खुद व्यापारी समाज से बिलोंग कर रहा है, तो उसे मालूम है क्या करना है। लेकिन आप देखिए, डी डॉलराइजेशन का एक प्रोसेस है, स्लो हो सकता है, रोका नहीं जा सकता, और वो बढ़ेगा ही। जी, and they say comparisons are odious, but it's good that to a great extent rupee has claimed some space in the international arena, because we are dealing with more than 20 countries in rupee, trading with and more than 20 we are looking for more countries to have the bilateral trade in rupees. Yes. Then only the kind of volatility which we have, we will be becoming slowly meaningless or less impactful. Yes, right. चलिए नजर डालते हैं एशियाई यूरोपीय बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मिला जुला दौर रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 3.5% का उछाल रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में लगभग 0.5%, और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि जापान के निकेई में 0.8% और सिंगापुर के स्टेट टाइम सूचकांक में मामूली गिरावट नजर आई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मिला जुला ही दौर रहा। कारोबार के दौरान जर्मनी का शेयर बाजार जहां हल्की बढ़त में नजर आया, वहीं लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक में गिरावट दर्ज हुई।
A look at the oil prices now. While oil prices rose today and were poised to end 3 weeks of decline buoyed by rising fuel demand, Brent crude was trading almost 0.8% up at $75.61 per barrel, and WTI crude gained over 0.6% to trade at around $71.77 per barrel. And US markets, well, US stocks edged high yesterday, buoyed by positive corporate earnings reports of some companies. Also, the number of Americans filing new applications for unemployment benefits decreased last week, the Labor Department report showed yesterday. The Nasdaq Composite surged 1.5%, S&P 500 rose over 1%, and the Dow Jones Industrial Average gained over 0.7%. मिस्टर बिजॉय, दोनों चीजों पे, जैसे कि ऑयल के दामों में बढ़त हुई तो इसीलिए लामी लामा ने उसको अमेरिकी के साथ जोड़ा कि अमेरिका में जहां जॉबलेस का डेटा आ रहा है वहां अगर कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़त हो रही है, दोनों का मिला जुला असर भारत पे कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये जो दोनों का दोनों वैल्यू है उसकी इंटेंसिटी कोई बहुत हाई नहीं है. जब आप $75 की बात कर रहे हैं, $75 बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता, और मैं 78 के आसपास तक का इम्पैक्ट देख रहा हूं. और ये जो अमाउंट है, तो थोड़ा सा देखिए, इंक्रीज इस बार है, इंप्रूवमेंट है, तो इंक्रीज होगा डिमांड का, और डिमांड इंक्रीज होगा, थोड़ा प्राइस तो मूव करेगा, अप होगा. तो इसलिए ये जो प्राइस है, ये प्राइस कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है. 72 से 75 के बीच का प्राइस, 76 तक का प्राइस भी एक नॉर्मल प्राइस माना. अमेरिकी शेयर बाजारों में अगर बढ़त है तो भारतीय बाजारों के लिए कितनी उम्मीद की अपेक्षा रखें? ये एक पॉजिटिव नोट है, एक पॉजिटिव नोट है. और जिस तरह से हमारा कोरिलेशन इंक्रीज कर रहा है दोनों मार्केट के बीच में, इंक्रीजिंग कोरिलेशन में, और इम्पैक्ट भी है कि जो एडवांस इकोनॉमी की तरफ जो हम टर्न कर रहे हैं, उसमें ये फैक्टर आपके मार्केट को एक पॉजिटिव बूस्ट देता है. और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने मंडे पूछा ना, इसका असर लेके मंडे को सामने में मतलब उम्मीद अभी भी कायम है. नजर डाल लेते सराफा बाजार पे. सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया. 24 कैरेट सोने 0.2% की बढ़त से 86,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 2.5% के उछाल से 98,010 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 0.2% की बढ़त से 85,948 रुपए, जबकि चांदी का 2.5% की बढ़त से 97,589 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. सोने और चांदी में 1 लाख के प्रति जो लक्ष्य है छूने के लिए, क्या चांदी फिर से दिवाली के बाद दोबारा से 1 लाख का स्तर कुछ पार कर पाएगी? पार करने की उम्मीद है, लेकिन इसका भी कह सकते हैं कि मिला जुला प्रभाव होगा. पहली बात है कि इन्वेस्टर के लिए तो बहुत खुशी की बात होगी कि ऊपर जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल जो खरीदने वाले, जो घरेलू उपभोग के लिए लेते हैं, शादी विवाह के लिए लेते हैं, उनके लिए एक अभी भी थोड़ा सा दर्द बढ़ेगा. लेकिन भारतीयों के मन में सोने के प्रति ललक स्वाभाविक रही है. सोना अभी भी, क्योंकि सुनने में बातें आती थी कि सोना इस स्तर के बाद तकरीबन 10% तक का कहीं गिरावट दिखा सकता है. कितना संभावना नजर आती है? ये निर्भर करता है कि स्टॉक मार्केट फिर से कैसे मूव कर रहा है. थोड़ा सा इसके साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप रखता है, लेकिन ये नेगेटिव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली अब पिछले कुछ सालों में नहीं देखा गया है, क्योंकि ये भी एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की तरह सोना भी आगे बढ़ता चला जा रहा है. और सबसे अच्छी बात क्या देखी गई है कि जो यंग जनरेशन है, उनके बीच में भी सोने का अट्रैक्शन मेंटेन्ड है. ये बहुत अच्छी बात है. पहले ये सिर्फ और सिर्फ older generation में हुआ करता था. And you also brought tons of gold from UK, I think. Yes. We are keeping our gold now with ourselves. That's also one step towards patriotism. Does it also make a difference? Increase in holding is giving you a strength even in global currency market as well. You have gold reserve, that is good, but global currency market has got a better strength because of that gold deposits. कॉमेक्स पे अगर देखें तो सोना डॉलर के टर्म्स में $2,952 प्रति औंस है और चांदी तकरीबन 34 के आसपास है. हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि इस लक्ष्य पे पहुंचने में भी काफी वो होता है. हालांकि चांदी का लक्ष्य जो हिस्टोरिकल है उसे अभी फिलहाल नीचे है. क्या माना जाए कि चांदी कहीं ना कहीं एक नया स्तर बनाएगी? उम्मीद कर रहे हैं. चलिए मिस्टर विजय, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर. Yes, friends, the headlines again. India and US aim to more than double total bilateral trade to $500 billion by 2030. India's wholesale inflation eases to 2.31% in January 2025. And benchmark domestic indices fall for 8th straight session. Sensex slips 200 points. Nifty closes below 23,000. So on that note, it's time for us to bid adieu. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goyal. signing off. Namaskar.